جو یہ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ ان کی مسلوں سے ہمارا ذکر ہے، تو ذرا غور کریں، جو کہا جا رہا ہے کہ نوح آیا اور قوم نوح نے کیا کیا، یہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ کو بتایا جا رہا ہے جان لو جب وقت آئے گا، کون سا وقت؟ جب انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب عذاب عظیم، رب کا غضب ان کے سر پر کھڑا ہوگا، ان کو نشان عبرت بنایا جانے والا ہوگا، صفحہ ہستی سے مٹایا جانے والا ہوگا مجموعی طور پر۔ تو اس وقت تم ہی سے نوح کی نسل رسول آئے گا، وہ آ کے تمہارے اوپر نوح کی نسل حق کھول کھول کر واضح کرے گا، آسمان و زمین کے راز حقائق کھول کھول کر واضح کرے گا۔ وہ تمہارے اوپر واضح کرے گا کہ یہ جسے تم ترقی سمجھ رہے ہو، جسے تم اپنے لیے مسیحا سمجھ رہے ہو، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تم بہت بڑے دجل کا شکار ہو کر اپنے لیے خود ہی پھانسی کا پھندا تیار کر چکے ہو۔ تمہارے ان مفسد اعمال کے سبب آسمان و زمین میں اتنی بڑی بڑی خرابیاں ہو چکی ہیں، اتنا فساد ہو چکا ہے کہ بہت بڑی تباہی تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ اب تمہارے پاس آخری موقع ہے کہ رب کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ، ورنہ اب تمہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جانے جا رہا ہے۔ لہذا جان لو جب یہ وقت آ جائے گا تب ہم تمہیں سے ہمارا بھیجا ہوا بھیجیں گے، ہمارا رسول آئے گا نوح کی نسل۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کے آنے سے پہلے کم سے کم ایک کذاب لازمی آئے گا۔ کیوں؟ اگر اس کے آنے سے پہلے ایک کذاب نہیں آئے گا تو پھر ہمارے بھیجے ہوئے کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ من الکاذبین ہے؟ یعنی جیسے کذاب آتے رہے ان میں سے ایک کذاب ہے۔ یہ تو کہا ہی تب جا سکتا ہے جب سچے کے آنے سے پہلے کم سے کم ایک کذاب لازم آئے، 2 آئیں، 4 آئیں، تب ہی کہا جا سکتا ہے سچے کو کہ یہ بھی جو کذاب آتے رہے ان میں سے ایک کذاب ہے۔ لہذا جان لو ہمارے رسول سچے کے آنے سے پہلے کذاب بھی آئیں گے، لیکن جو کذاب ہوں گے ان کو ہم کذاب ثابت کریں گے، ان کو کیا ہم کریں گے؟ ان کو اس طرح نہیں بچائیں گے جیسے نوح اور اس کی دعوت کے ماننے والوں کو بچایا تھا، اس کے ساتھیوں کو بچایا تھا۔ ہم اس کا انکار کرنے والوں کو یا ان کا انکار کرنے والوں کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے، صفحہ ہستی سے نہیں مٹائیں گے جیسے نوح کا کفر و کذب کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا۔ یوں ہم ان کو کذاب ثابت کر دیں گے، رب کذاب ثابت کرے گا۔ لیکن جب ہمارا بھیجا ہوا آئے گا تو جان لو اس وقت آنکھیں کھول لینا، وہ تمہیں آ کر آباء و اجداد والی کہانیاں نہیں سنائے گا، بلکہ نوح کو کیا کہا گیا تھا؟ نوح کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک بالکل نیا دین لے کر آ گیا ہے، ایسا دین جس کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سے پہلے سنا تھا نہ ہمارے آباء و اجداد نے۔ یہ تو بالکل ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے۔ نوح کی نسل آئے گا جو تمہارے اوپر آسمان و زمین کا راز کھولے گا، جو تمہارے اوپر واضح کرے گا کہ تم نے آسمان و زمین میں کتنا فساد کر دیا ہے، تمہارے اوپر واضح کرے گا کہ عذاب عظیم اب تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ یوں جان لو اس وقت آنکھیں کھول لینا، اور اس وقت ہم نوح کی نسل اپنے رسول عیسیٰ احمد عیسیٰ اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو بالکل اسی طرح بچائیں گے جیسے نوح اس کی دعوت کو ماننے والوں کو بچایا، اور کفر و کذب کرنے والوں کو عین اسی طرح نشان عبرت بنائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹائیں گے جیسے اس وقت جو قوم نوح ہے ان کو ہم نے نشان عبرت بنایا تھا۔ اور پھر ہم بعد میں نوح اور جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں کو زمین کا وارث بنا دیا، بالکل ایسے ہی اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں کو زمین کا وارث بنائیں گے، نہ کہ آ کر یہ کہے گا جی 300 سال بعد میری حکومت، میری موت کے بھی 300 سال بعد جا کے میرے ماننے والے کی حکومت قائم ہوگی۔ ایسا کذاب کہتے ہیں، کذاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے۔ آگے بڑھو۔ وہ ہود کی نسل ہوگا، دوسرے پہلو سے واضح، ہود کی نسل، وہ صالح کی نسل ہوگا۔ ہود اور صالح نے کس سے متنبع کیا تھا؟ القاریہ سے، القاریہ یعنی ایٹمی جنگ، اس سے متنبع کیا تھا۔ تو ہمارا بھیجا ہوا آئے گا تو کس سے متنبع کرے گا؟ ایٹمی جنگ سے متنبع کرے گا۔ جیسے ہود اور صالح ان دونوں نے ایٹمی جنگ سے القاریہ سے متنبع کیا، ان کا کفر و کذب کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ کہاں ہے تیرا عذاب، وہ تیری القاریہ آئی نہیں، این اسی طرح ہمارا بھیجا ہوا آئے گا ان کی نسل، وہ آ کر تمہیں القاریہ سے ایٹمی جنگ سے متنبع کرے گا،
खोल खोल कर मुतनबा करेगा और तुम उसका कुफ्र व कज़ब करोगे और तुम उसे कहोगे कि कहां है तेरी अलकारे आई नहीं, तो जान लो हम फिर क्या करेंगे, वही करेंगे जो हूद और साले के वक्त किया था। कुफ्र व कज़ब करने वालों को हम जलाकर राख कर देंगे, उनकी तहजीब को जलाकर राख कर देंगे, निशान इबरत बना देंगे, सफा अस्सी से मिटा देंगे, उनके जो आसार होंगे उनकी तहजीब के बाद वालों के लिए प्रिजर्व कर देंगे ताकि बाद वाले उनसे इबरत हासिल करें। ठीक है ना। तो यूं जो भी सच्चे के आने से पहले आकर दावे करेगा वो कज़ाब साबित होगा, ना ही उसकी कोई एक भी बात सच्ची साबित होगी, ना ही रब उसे सच्चा साबित करेगा कि उसकी जिंदगी में, उसकी मौजूदगी में उसका कुफ्र कज़ब करने वालों को जलाकर राख कर दिया जाए, निशान इबरत बना दिया जाए और उससे और उसकी मानने वालों को दुनिया में आला मकाम दिया जाए, इज्जत दी जाए, जमीन का वारिस बनाया जाए। इस तरह जो भी कज़ाब आएगा वो निशान इबरत खुद निशान इबरत बनता चला जाएगा, ना कि उसका इनकार करने वाले। लेकिन जब सच्चा आ जाएगा, हमारा भेजा हुआ आ जाएगा, तो फिर जान लो हमारा भेजा हुआ नूह की मसल होगा एक पहलू से, दूसरे पहलू से हूद की मसल होगा, तीसरे पहलू से साले की मसल होगा, चौथे पहलू से किसकी मसल होगा, शुएब की मसल होगा। शुएब ने क्या कहा था? शुएब ने, ये जो तुम पहाड़ों को तराश रहे हो, ये जो बुलंद बांग इमारतें बना रहे हो, ये जो कुछ कर रहे हो, ये तरक्की नहीं है, तुम फसाद कर रहे हो, या तुम जमीन का बैलेंस बिगाड़ रहे हो, मेजान जो रब ने कायम किया हुआ है उसे बिगाड़, उसमें खसारा कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें जल्जले, आंधियों, तूफानों, इन तरह की तबाहियों का, हलाकतों का सामना है, लावे फट रहे हैं। शुएब ने कहा था जिसे तुम सलात कहते हो ये सलात नहीं है, जिसे तुम अल हज कहते हो ये अल हज नहीं है, जिसको तुम इबादत, रब की इबादत कहते हो ये इबादत नहीं है। और शुएब का कुफ्र व कज़ब करने वालों ने क्या कहा था? उस वक्त के मुलाटू ने क्या कहा था? उस वक्त के मुलाटू ने कहा था कि ऐ लोगो, ये तुम्हें तुम्हारे आबा अजदाद के दीन से हटाना चाहता है, ये चाहता है कि जो तुम सलात कायम कर रहे हो, जो तुम नमाजें पढ़ रहे हो, ये तुम्हें उससे रोकना चाहता है। जो तुम्हें तुम्हारे आबा अजदाद से दीन मिला है, बड़ों से दीन मिला है, जो सदियों से चला रहा है नस्ल दर नस्ल, ये तुम्हें उससे हटाना चाहता है। ये कहा जाएगा, ये कहा जाना था सच्चे को ये कहा जाना था कि ये 100% एक नया दीन लेकर आ गया। जो सच्चा आता है वो कभी भी आकर ये नहीं कहता कि जो इससे पहले तुम कर रहे हो वो सब का सब हक है, सिर्फ मुझे रसूल मान लो। ये सच्चा नहीं होता, ये कज़ाब होता है। क्यों? क्योंकि रसूल के बारे में रब का ये कानून है कि रसूल सिर्फ तब बेस किया जाता है जब ज़लालिम मुबीन होती हैं। कुरान में उठाकर देख लें, सूरह अल जुमा की आयत नंबर 2 देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह के साथ आयत नंबर 3 और वैसे आयत नंबर 2, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आगे क्या है? व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रसूल के बारे में बता दिया गया कि रसूल के बारे में हमारा कानून ये है कि रसूल सिर्फ और सिर्फ हम तब बेस करते हैं, तब लेकर आते हैं, वो जो रसूलन होता है, रसूला वो जो रब खुद आता है, सिर्फ और सिर्फ तब आता है, तब रसूल बेस किया जाता है जब ज़लालिम मुबीन होती हैं। उससे पहले 100% गुमराहियों का होना शर्त है, लाजिम है। ये वजह है जिस वजह से जब रसूल आता है और जब वो आकर हक खोल को वाज़े करता है तो हर कोई यही कहता है ये तो एक नया दीन लेकर आ गया, ऐसा दीन कि जिसके बारे में आज से पहले हमने कभी किसी से सुना ही नहीं था। ये तो एक ऐसा दीन लेकर आ गया, इसका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। नूह को क्या कहा गया? नूह को कहा गया कि ये गुमराह है। उस वक्त के जो मुल्लाटे थे, दीन के ठेकेदार थे, जिनके पीछे अवामंदू की तरह चाली थी, उन्होंने नूह को क्या कहा? कहा कि ए नूह, हम तुझे देखते हैं कि तू क्या है, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। ए नूह, हम तो तुझको देख रहे हैं कि तू 100% गुमराह है, गुमराहियों में है। तेरे के पास तो दीन की हक की एक किरण भी नहीं है, तुझे तो पता ही नहीं दीन होता क्या है। तो ये कुरान में क्या कहानियां सुनाई जा रही हैं? कुरान में अल अव्वलीन की मसलों से आज का जिक्र हो रहा है। तुम में जिसको बेस किया जाना था, जिस रसूल को, उसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, तो जरा गौर करो, क्या आज ऐसी कोई शख्सियत आई, मौजूद है? जब देखोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा, हाँ, अहमद ईसा, जिसने हक हर लिहाज से खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया।
कोई उसे गलत साबित नहीं कर सका, कोई भी उसकी किसी एक बात को भी गलत साबित नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि अहमद ईसा को गालियां दी जा रही हैं, कत्ल के फतवे लगाए जा रहे हैं, उसके साथ दुश्मनी की जा रही है, उसको गुमराह कहा जा रहा है, कज़ाब कहा जा रहा है, उसके ऊपर तोहमतें और मलामतें लगाई जा रही हैं। फिर मूसा और आले फिरौन को सामने रख ले। मूसा ने जब आकर हक खोल को अगर वाजे किया, कहा मैं तुम्हारे रब का भेजा हूं, तो आले फिरौन ने मानने से इनकार कर दिया, कुफ्र व कज़ब किया। नतीजा क्या निकला? पहले छोटे छोटे अजाब आए, किसका जिक्र किया? मेंढकों का, टिड्डियों का, वबाएं आई। मूसा की मौजूदगी में, रसूल की मौजूदगी में छोटे छोटे अजाब आए, बजाय ये कि वो रब की तरफ अपना रुख करते, रुजू करते, वक्ती तौर पर वो उनको रब याद आ जाता था, लेकिन जैसे ही वबा हटती फिर वही करना शुरू हो जाते, फिर वही करना शुरू हो जाते। तो ये कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है, बल्कि वाजे कर दिया तुम्हारे ऊपर, जान लो जब तुम्हारे अंदर वो वक्त आएगा, तुम्हें वक्त आएगा, तो हम मूसा की मसल व रसूल भेजेंगे, जो एक पहलू से देखोगे तो तुम्हें नूह की मसल नजर आएगा, दूसरे पहलू से तुम्हें हूद की मसल नजर आएगा, तीसरे पहलू से तुम्हें सालेह की मसल नजर आएगा, चौथे पहलू से तुम्हें शुएब की मसल नजर आएगा, पांचवें पहलू से तुम्हें लूत की मसल नजर आएगा, छठे पहलू से तुम्हें मूसा की मसल नजर आएगा। मूसा की मसल कैसे? जैसे मूसा ने आकर हक खोल कर वाजे किया, उसका कुफ्र कज़ब किया गया, तो मूसा की मौजूदगी में हम बड़ा अजाब लाने से पहले, उन्हें सफासी से मिटाने से पहले, गर्क करने से पहले छोटे अजाब लेकर आए। वबा आई, मेंढक आए, टिड्डियां आई, जुएं आई। तो जान लो ये हम तुम्हें कहानियां नहीं सुना रहे, बिल्कुल ऐन इसी तरह जब हमारा सच्चा आएगा, वो हक खोल कर वाजे कर लेगा, उसे वो खोलकर मुतनबा कर लेगा, उसका कुफ्र कज़ब किया जाएगा, तो बदले में हम क्या करेंगे? जब वो अपना पैगाम पहुंचा चुकेगा तो उसके बाद फिर हम बड़ा अजाब लाने से पहले, सफा हासी से मिटाने से पहले छोटे अजाब लाएंगे अपने रसूल की मौजूदगी में। तो जरा गौर करो, क्या आज अहमद ईसा की मौजूदगी में जब अहमद ईसा ने खोल कर मुतनबा कर लिया, तो उसके बाद वो अजाब आ रहे हैं या नहीं? कोरोना नामी वबा पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में ले लिया, आई या नहीं? टिड्डियां आई या नहीं? आ रही हैं या नहीं आ रही? और तरह तरह की खून का अजाब, कत्लो गारत गरी, कहीं जहाज क्रैश हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बीमारियां, मुसीबतें, हर तरह की तकलीफ, गिर चुके हो या नहीं? भूख से मर रहे हो या नहीं? कहत का शिकार हो या नहीं? आटा, चीनी, दाल, दूध, तुम्हारा रिज़्क नापैद हो चुका है या नहीं? महंगाई बढ़ती जा रही है नहीं? तो ये कब होना था? ये तो हमारे भेजे हुए जो सच्चा था उसकी मौजूदगी में होना था। तो देखो, जो इससे पहले जिन्होंने आकर ऐलान किए, दावे किए, कि ये सब उनकी मौजूदगी में हुआ? नहीं हुआ ना। आज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो फिर सच्चा कौन? तो आगे भी जान लो, आगे क्या है। हम यही नहीं तुम्हें छोड़ देंगे कि तुम ये छोटे छोटे तुम्हें अजाब दें और तुम बाज ना हो फिर वही करो और हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ दें। नहीं, हम अपने रसूल की मौजूदगी में तुम्हें सफा हसी से मिटाएंगे और ऐन उसी तरह बाद में जमीन का वारिस बनाएंगे अपने रसूल और उसकी मानने वालों को, जैसे नूह, हूद, सालेह, शुएब, लूत, मूसा और उनकी मानने वालों को जमीन का वारिस बनाया गया था। जान लो, जैसे वो कौमें जो उन्होंने खलक किया था, जो कुछ बनाया था, सब पीछे छोड़ गई, तुम भी छोड़कर जाने वाले हो। ये वक्त दूर नहीं है, ये तुम अपनी आंखों से देखने वाले हो। ठीक है ना। ये गौर करने वाली बातें हैं। अब भी अगर किसी के कान नहीं खुलते तो जान ले उसका इंजाम क्या है। इंजाम तो बिल्कुल वाज़ेह है।